Good evening, everyone. Today we have a special session with respect to educational series Learn to Earn. We at Meta Equities would like to take this advantage to help our clients as well as the viewers to understand technical charts so that in these volatile markets they can try to understand and try to learn and earn something from the technical knowledge. So here we have Mr. Riyank Arora, who has a good healthy experience in understanding the charts, and he has been also some kind of small time trainer to lot of students in his career. So he is with us from last 2 years and doing well in this market. So with the interest of the clients as well as the non-Meta clients who would like to learn technicals, we have started this session. So Riyank, over to you. I hope everybody will get some kind of good knowledge with your training session today. Riyank, over to you. Yes, definitely. Thank you so much, sir, for the introduction. Very warm welcome to everyone who is present for this session. The entire motive of bringing this series was just to educate people with technical analysis and charts. And, in this volatile market environment, as there is a lot of uncertainty going on, it is important that we have some bit of knowledge on technical charts and, the basic understanding of price movement so that we are able to gauge market sentiment well and, take informed decisions. Today's session is going to be the very first session of our Learn to Earn series. So, we are going to keep it as simple as possible. And, we are going to keep it as basic as possible to, first of all, introduce everyone with what are candlestick charts and how does, technical analysis work. A small introduction about myself. I have been associated with the Meta Group since last 2 years, and uh, before that, I have also trained a lot of people in my career. We are just going to get started with our today's session, and we will, try to brush upon the basic concepts and eventually going to learn a few about, chart patterns as well. Today's topic is going to be on understanding of candlestick charts and chart patterns. The session flow is going to be something like for the first 10 minutes, we'll be discussing on candlestick charts and how to study and analyze them. And then after that, for the next 15 minutes, we'll be looking upon trend lines and support and resistance, like how exactly do we draw trend line and how exactly do we draw support and resistance on a technical chart and how it is useful further on. For the next 15 minutes, then we'll be looking upon some basic chart patterns. And after that, we'll be having a Q&A and a general market discussion with, as per the current market sentiment, how everything has been going on around. I think it's good that without wasting much time, let's just get started with our today's session. Uh, just a standard disclaimer. The presentation which is going to be presented here today is just for educational purposes. Riyank Arora is an analyst under Mehta Equities, registered as a research analyst under SEBI regulations, with SEBI registration number as the following. The views and opinions which will be expressed in the presentation represent the view of presenter which are subject to change without notice. Nothing in this presentation constitutes a legal advice to the viewer. So this is just a standard disclaimer for our today's session, which one should take a due note of before we get started. Some bit of introduction about us. Mehta Group has been promoted by Mr. C.A. Rakesh Mehta sir in 1995. So it has been, close to around about more than 32 years uh, in the industry. Uh, it has been among the most preferred financial service provider. It is known for nurturing and rewarding relationships. We have a client base of over more than 100,000 and we are present in more than 100 cities. Managing an AUM of close to $500 million across several products and also other businesses. And we are offering investment banking services to support startups. Uh, we also have 30 years of track record in capital markets and one-stop shop for Indian investments as well. Now what we'll do is that we'll just get started with our today's session. Uh, just one second. I think my video is not visible. It is very clear now. Okay, perfect. Yeah, so we'll just get started with our today's session now. As our today's motive is going to understand on candlestick charts and basic chart patterns.
So, before we get started with our session, it is important to know that what candlestick charts exactly are. So, there are like two type of candlestick that we generally see forming on chart patterns. One is like a standard green candlestick, which you see right here up on the screen, which is called a bullish candlestick. And then the other one is a decreasing, which is also called as a bearish candlestick, which is this particular red candlestick that you see right up on the screen. So, what a candlestick generally shows is that it generally shows the open, high, low, close. These are like the four prices that are generally demonstrated by a candlestick. So, like if a stock is opening, let's say at around 100 rupees and it is closing at 110, so that will be demonstrated by a green candlestick bar because the closing price is more than the opening price. So, during that particular period, let's say the stock opened at 100 and it went till close to around 120 level, and then it came down till 90, but it closed at 110. So these four prices are the parameters which are shown by candlestick charts. So open, high, low, close. These four levels, the candlestick usually demonstrates. What we'll do is I'll just take you up to my trading screen and very quickly show you how we are able to see charts and interpret whatever open, high, low, closes prices are. So let's take any random example. Let's say for example we are taking Nifty only for instance, uh, and focus on any particular green candlestick, which is a standard big bar which we can see up on the charts. Let's say we are talking about this particular green candlestick which you see right upon the screen. Okay, so very evidently, open is this particular price which you are seeing right here, uh, which is somewhere around 23,411. So the candle opened at 23,411. The stock price went till around 23,900, which was the high price, and it came down till 23,359, which was the low price. And this particular price, which is 23,907. So these are the four measurements, the four metrics which we see as per a candlestick. Uh, and the color, which is green, it is demonstrating that this closing price, which is 23,900, was more than the opening price, which was at 23,411. So this is what a green candlestick looks like and the four levels which it demonstrates. Uh, Similarly, for a red candlestick, which is, let's say, this particular candle, everything is the same. This is the high price, sure, this is the low price, but just the open and close are reversed. The opening price is more than the closing price on the particular candle. So the four measurements which we see from these candlestick chart, everything revolves around that. And I feel that this entire technical analysis is based on these four particular things only, which is open, high, low, and close. So we are going to be, forming any kind of chart patterns, trend lines, support, resistance, everything around these four levels only. So this was like just a basic brush upon and touch upon, open, high, low, close, and what candlestick generally looks like, and what does a candlestick interprets. Now going forward, a very interesting question which I often get asked, that where do you, usually see charts, because there are many platforms. There's like Money Control, there's like investing.com, and there are many other, platforms where we can see charts. So I personally see charts on TradingView, which is a charting platform. So there's a website called tradingview.com, which you can open up on your screen and you'll be able to see, charts for free of cost. I feel that, the free plan is well enough for anyone who is investing, or even if someone who is momentum trading and focused just upon one or two stocks. So TradingView is that particular platform which we use for charting. So we'll just open upon, and this is what TradingView generally looks like. uh, so TradingView basically helps you to analyze charts and create your studies and everything. So this is the platform that we'll be using for charting. So going forward, what we'll try is that I'll try to speak in English as well as Hindi, so that कि सबसे थोड़ा बहुत interaction भी होए, and throughout the session थोड़ा flow भी अच्छा रहे. तो कॉन्सेप्ट लिंक टू कैंडलस्टिक चार्ट्स, जैसे कि हमने कहा कि दो कैंडलस्टिक्स होते हैं, और जो ये दो कैंडलस्टिक्स होते हैं, एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है. ये जनरली सिर्फ चार चीजें डेमोन्स्ट्रेट करता है: ओपन, हाई, लो और क्लोज. तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वील गो फॉरवर्ड एंड वील ऑब्जर्व द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर लिंक्ड टू दीस कैंडलस्टिक चार्ट्स, and we'll observe that how these concepts helps us in shaping and building further concepts. सो जनरली कभी भी हम चार्ट देखते हैं, तो जैसे ये मैंने यहाँ पे चार्ट खोल लिया आपकी स्क्रीन पे ट्रेडिंग व्यू पे, तो टू एक्सिस वी जनरली ऑब्जर्व. वन इज द एक्स एक्सिस एंड वन इज द वाई एक्सिस.
तो ये जो नीचे वाला एक्सिस होता है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये ऊपर वाला ये जो साइड में हमको एक्सिस दिखता है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। जो नीचे वाला ये एक्सिस हमको दिख रहा है, दिस जनरली डेमोन्स्ट्रेट्स टाइम। तो यहाँ पे हमको टाइम का पता चलता है। और ये जनरली ये वाला जो वाई एक्सिस होता है इस पे हमको जनरली प्राइस दिखता है। तो ये दो एक्सिस जो होते हैं ये हमको ये बताते हैं कि नीचे वाला जो एक्सिस है जो हमको टाइम बता रहा है, तो यहाँ पे जैसे हम अगर डेली चार्ट प्लॉट कर रहे हैं, तो वट एवर द डिफरेंस इज बिटवीन दिस टू दिस इज 26 नवंबर, दिस इज 27 नवंबर, देन दिस इज 28 नवंबर। सो द एक्स एक्सिस बिलो इज शोइंग मी द टाइम, and the y-axis which you can see right up here, this is 24,200, this is 24,400, this is 24,800। तो ये चीज वाई एक्सिस जो यहाँ पे साइड में है ये मेरे को प्राइस दिखा रही है। तो दिस इज व्हाट अ चार्ट जनरली टेल्स यू, एंड हाउ डू यू इंटरप्रेट अ कैंडलस्टिक। ये दो बहुत ही बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच वी शुड बी अवेयर अबाउट बिफोर वी प्रोग्रेस फर्दर। तो एक्स एक्सिस का हो गया एंड ये वाई एक्सिस का हो गया, तो जस्ट टू थिंग्स आई फील दैट कि सबको पता होना चाहिए। आई फील दिस माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर सम पीपल। दो तरह के प्राइस स्केल होते हैं, एक होता है रेगुलर प्राइस स्केल और एक होता है लॉगरिथमिक प्राइस स्केल। अब फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन मैंने एक बार खोला है, तो जूम इन करने में आपको दिख रहा होगा कि 22,600, 22,800, 23,000, 23,200। तो 200 पॉइंट का डिफरेंस है जिस पर प्राइस कॉन्सिक्वेंटली प्लॉट हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं रेगुलर प्राइस स्केल। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। 200 पॉइंट का ही डिफरेंस रहा है थ्रू आउट दिस वाई एक्सेस पूरा। तो अगर हम इसको लॉग में चेंज कर देते हैं तो आप देखोगे कि डिफरेंस यहाँ पे चेंज हो गया है। 22,650, 22,800, 23,000, और फिर उसके बाद जनरली आप देखेंगे तो 120 पॉइंट का फर्क इधर था, देन 150 पॉइंट का फर्क, देन 200 पॉइंट का फर्क। तो दिस इज कॉल्ड अ लॉगरिथमिक प्राइस स्केल। अब फर्क क्या है? रेगुलर प्राइस स्केल में जो डिफरेंस होता है यहाँ पे साइड में एक्सेस पे, वो फिक्स रहता है। या तो जैसे अगर 400 पॉइंट है, 4,000 पॉइंट है यहाँ पे, तो 4,000 पॉइंट ही रहेगा कंसिस्टेंट थ्रू आउट। और लॉगरिथमिक प्राइस स्केल पे क्या होता है कि ये जो डिफरेंस होता है दिस इज जनरली मेजर्ड इन परसेंटेज टर्म्स। अगर 100 है तो नेक्स्ट 110 होगा, तो उसके बाद 121 होगा विच इज रफली 10%। 121 के बाद भी अगर हम 10% देखें तो इट विल बी रफली 133। तो जो डिफरेंस होता है वो स्केल पे पर्टिकुलर लॉगरिथमिक पे परसेंटेज वाइज फिक्स रहता है, और लीनियर स्केल पे न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज फिक्स रहता है। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन लॉगरिथमिक एंड रेगुलर प्राइस स्केल। जनरली क्या होता है कि जो लॉगरिथमिक प्राइस स्केल होता है वो हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स के लिए यूज करते हैं। तो जितने भी लॉन्ग टर्म टेक्निकल स्ट्रक्चर हो गए जो हम वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम जनरली लॉगरिथमिक प्राइस स्केल पे देखते हैं। अब अगर ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो ट्रेडिंग व्यू पे अगर हमको, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज रेगुलर टाइम स्केल चार्ट मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी अगर इसको हमको लॉग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे एक सेटिंग्स का बटन होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगरिथमिक सेलेक्ट कर देंगे, तो हमारा चार्ट जो है वो लॉगरिथमिक स्केल पे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही लॉगरिथमिक स्केल पे कन्वर्ट होता है एक्सेस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होएगा, क्योंकि जो प्राइस है वो परसेंटेज टर्म्स में वाई एक्सेस पे स्केल कर रहा है। तो जस्ट यही फर्क होता है नॉर्मल स्केल में और लॉगरिथमिक स्केल में। जस्ट बेसिक थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट बिफोर वी गो फर्दर इन द सेशन। अब ट्रेंड लाइंस की बात करें, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेंड लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो ट्रेंड बताती है। बेसिकली अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम बोलते हैं दैट द स्टॉक इज इन एन अप ट्रेंड, बट इफ द स्टॉक इज गोइंग डाउन देन वी जनरली से दैट द स्टॉक इज मूविंग इन अ डाउन ट्रेंड। तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसको हम बेसिकली ट्रेंड कहते हैं। ऊपर जा रहा है तो अभी अप ट्रेंड होगा, अभी जैसे कि पास्ट फ्यू 2-3 महीने से मार्केट पूरा नीचे चल रहा है, तो वी से दैट मार्केट इज मूविंग इन अ डाउन ट्रेंड। तो अभी करेंटली मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये जो पूरा ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है दिस इज फॉर्म्ड अराउंड दीज लेवल्स एंड दीज डिस्कशंस ओनली। तो कोई भी लाइन जो एक लोस को कनेक्ट करती है, पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लोस जो बनता है। अभी जैसे आप मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, वो रफली 100 रुपए के आसपास चल रहा है। अब 100 रुपए का स्टॉक हम मान लेते हैं कि 110 तक गया, फिर वहां से वो 105 तक आया, एंड 105 का स्टॉक 120 तक गया, और फिर 120 से 115 तक आया। तो वो जो एक लाइन बनेगी जो 100, 105 और 115 को कनेक्ट करेगी, उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड लाइन। और रिवर्स अगर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड लाइन के लिए। थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख के हम इस कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। तो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ श्रीराम फाइनेंस। एक बार हम यहाँ पे चार्ट पे ही देख लेते हैं। तो ये श्रीराम फाइनेंस का मैंने चार्ट यहाँ पे प्लॉट कर दिया है।
तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि स्टॉक 730 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 730 रुपए से स्टॉक गिर गिर के 550 तक आ गया, 549 तक। वहां से स्टॉक में थोड़ा सा बढ़त हुई और 650 तक गया। देन 650 से स्टॉक वापस नीचे आके 493 तक आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। पहले 730 से 550 तक आया, फिर 650 तक गया, एंड देन फिर नीचे आके उसने एक नया लो बना दिया। तो यहाँ पे क्या किया स्टॉक ने कि एक नया हाई तो बना नहीं पाया, बट फर्दर पुश होके नए लो की तरफ मूव हो गया। तो 730 को अगर हम 650 से यहाँ पे कनेक्ट कर दें, तो ये जो लाइन बन रही है, ये इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। अभी हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को? ट्रेडिंग व्यू पे हम ओपन करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक टूल बार आ रही होती है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे। तो अब ये जो दो हाई पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट करके ये जो लाइन ड्रॉ करी है, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। ये कहता है कि स्टॉक जब तक इस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, और स्टॉक में रिवर्सल पॉसिबल होने का थोड़ा दिक्कत रहेगा आगे चल के। तो अगर आगे देखते हैं हम, तो ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया। अब इसका मतलब क्या होता है कि वो जो डाउन ट्रेंड था स्टॉक का, वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, और अब धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो वही हम देखें कि यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड खत्म हो गया 600 रुपए के आसपास, तो स्टॉक वहां से ऑलमोस्ट 660 तक ऊपर की तरफ आ गया था। तो इस चीज को हम कहते हैं डाउन ट्रेंड लाइन, जो हमने इस पर्टिकुलर चार्ट पे ड्रॉ करी है। अभी अगर हम एल की बात करें एट करंट लेवल्स, तो देखिए ये एल का चार्ट है। तो हम देखेंगे कि स्टॉक 530 रुपए से लेके 690 तक गया था। 530 से 690 तक गया, फिर 690 से जब नीचे आया तो सिर्फ 598 तक आया, एंड वहां से ऊपर चल के ऑलमोस्ट 1200 तक के लेवल्स स्टॉक ने टच किए। तो ये जो एक लाइन बनेगी, जो हम 530 को कनेक्ट करेंगे 598 से, ये जो एक लाइन बनी है, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड लाइन। तो माना यह जाता है कि स्टॉक जब तक इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा और स्टॉक एक अप ट्रेंड में ट्रेड करेगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक ने ट्रेंड लाइन टच भी किया है, और वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी लिया है 715 के आसपास। तो अब यहाँ से एक बहुत इजी व्यू हमने फॉर्मुलेट कर लिया कि हाँ, जब तक एल आई सी 715 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक स्टॉक पॉजिटिव रहेगा। तो एल आई सी का 715 रुपए का सपोर्ट लेवल हो गया कि जब तक द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 715, it will be in an uptrend. But if it breaks below 715, then it will be in a downtrend. Then uptrend reverse. So that is just the basic interpretation which we form as per the basis of trend lines and charts. तो ऐसे हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करके एक बहुत बेसिक एजम्पशन बना सकते हैं। करंट मार्केट कंडीशन की भी अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे अगर हम, तो एक ऑल टाइम हाई का जो हमने लेवल यहाँ पे मारा था 26,277 के आसपास, और अभी हम ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 26,277 से हम एक बार नीचे आए थे 23,260 तक। 23,260 से जब ऊपर आए थे, तब हम सिर्फ 24,857 तक ही आ पाए, और फिर वहां पे फर्दर सेलिंग आई और अब हम 22,000 के आसपास आ गए। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 26,277 से लेके ये 24,857 के आसपास के लेवल को कनेक्ट करके, और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि देखिए आप, ये जो ट्रेंड लाइन है, अभी तक निफ्टी पूरी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ से निफ्टी ने कोशिश भी करी थी, अगर आप देखेंगे बीच में एक बार 22,786 से ऊपर आने की, लेकिन वापस से 23,800 पे सेलिंग प्रेशर आया, क्योंकि वहां पे एक डाउन ट्रेंड लाइन प्रेजेंट थी। तो वहीं से जो सेलिंग प्रेशर आया, वापस से मार्केट पूरा 22,000 तक नीचे आ गया। तो अगर हम अज्यूम भी करते हैं यहाँ से, अगर हम मार्केट ऊपर की तरफ हम प्रोजेक्ट करें, तो अभी हमको दिखेगा कि समवेयर अराउंड 23,000 के आसपास हमारी जो अभी ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रही है। तो इसीलिए आगे चल के कोई भी शॉर्ट कवरिंग आता है, तो ऐसा लगता है कि 23,000 तक पॉसिबिलिटी आएगा, और 23,000 से वापस से थोड़ा सा राउंड ऑफ सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी फॉर द टाइमिंग है, जब तक हम पूरा डाउन ट्रेंड में मूव कर रहे हैं। लेकिन 23,000 के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं, तब थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल सकती है। अ, आगे की बात करें, ये हमने दो एग्जांपल्स लिए ट्रेंड लाइन को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। ट्रेंड लाइन के अलावा एक कॉन्सेप्ट और होता है, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, तो जनरली ऐसा होता है कि सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पे स्टॉक आ गया अगर, तो वहां से स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट वापस आ जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी स्टॉक का सपोर्ट है 100 रुपए के आसपास, और रेजिस्टेंस है 200 रुपए के आसपास, और अभी स्टॉक चल रहा है 150 रुपए के आसपास। अब 150 रुपए से अगर स्टॉक 100 रुपए के आसपास आएगा, तो वहां पे स्टॉक में ऊपर की तरफ मूव आएगी। तो ये डेफिनेशन होती है, बहुत इजी डेफिनेशन होगी सपोर्ट की। और 150 का स्टॉक अगर 200 तक चला गया, तो वहां से स्टॉक नीचे आ सकता है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस।
तो कोई भी लेवल जहां से स्टॉक ऊपर या नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी रखता है उसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट जनरली वो लेवल होता है जहां से ऊपर की तरफ मूव आती है, और रेजिस्टेंस जनरली वो लेवल होता है जहां से नीचे की तरफ मूव आती है। तो थोड़े बहुत चार्ट्स देखते हैं, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज बेटर देन थ्योरेटिकल। मेरे को भी कभी डेफिनेशन पढ़ के इतना समझ नहीं आया था जितना प्रैक्टिकली एग्जांपल्स को देख के आया। तो बहुत इजी एग्जांपल देखते हैं, आई विल जस्ट शो यू ऑन चार्ट ओनली। एक कल्याण ज्वेलर्स का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा चार्ट को पहले लेके जाते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि स्टॉक में एक बहुत जोरदार रैली देखने को मिली थी 400 रुपए के आसपास से। यहाँ पे आप देखेंगे 330 रुपए के आसपास से स्टॉक ऑलमोस्ट 800 रुपए तक गया था। अब क्या हुआ था स्टॉक में कि 800 रुपए तक गया, फिर 800 रुपए के आसपास से स्टॉक नीचे आके 650 तक आ गया था, जो कि रफली 17 से 18% की डाउनसाइड मूव थी। रफली 20% नीचे आ गया था। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि 786 का ये जो लेवल है, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल एज एन एक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी स्टॉक आ रहा है तो वहां से स्टॉक ने थोड़ा सेलिंग प्रेशर फेस किया है 20% के आसपास ऊपर से, राइट। तो 786 का जो लेवल है अब हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करते हैं, और 786 के लेवल पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने एक बहुत इजी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बनाया कि 786 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जब भी स्टॉक आता है तो क्या होता है कि यहाँ से स्टॉक विल स्टार्ट टू गो डाउन। ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशन होती है रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस पे आ गया स्टॉक तो वहां से वो नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम देखेंगे कि 786 के आसपास यहाँ पे एक बार स्टॉक आया, और वो वापस 720 तक आ गया, एंड देन वापस से 786 तक आया, एंड देन वहां से तो जो सेलिंग आई तो स्टॉक 430 के आसपास आके नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, कि अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है तो वहां से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आएगा, और अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस कर जाता है और वहां से अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो उस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकडाउन क्या होता है, ये आगे चल के हम थोड़े और एग्जांपल्स देखेंगे तब समझेंगे। बट अभी के लिए थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की साइड पे। एक और बेसिक डेफिनेशन होती है, जैसे मैं आपको टाटा मोटर्स का चार्ट यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो देखिए टाटा मोटर्स का जो रेजिस्टेंस था वो 605 के आसपास था, क्योंकि 605 से स्टॉक यहाँ पे नीचे की तरफ आया था। देखिए मैं आपको एक बार लेवल दिखाता हूँ। ये 605 रुपए का लेवल था, यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ आया 265 तक, फिर वापस 600 के आसपास आया, और नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 60 रुपए तक आ गया था। तो ये हम थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं ताकि थोड़ा एनालिसिस बेटर हो। फिर वापस से स्टॉक 600 रुपए के आसपास 530 540 के आसपास आया, फिर वहां वापस से 366 के आसपास आ गया। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, स्टॉक ने 600 रुपए के ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट हम कहते हैं कि कभी भी कोई भी स्टॉक का प्राइस, अब यहाँ पे अगर स्टॉक प्राइस गोज अबव 605, तो अगर 605 रुपए के ऊपर स्टॉक का प्राइस चला गया तो उस केस में हम इसको ब्रेकआउट कहते हैं। स्टॉक प्राइस गोज अबव रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट। तो वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ ब्रेकआउट, कि ब्रेकआउट क्या होता है। तो यहाँ पे 605 के ऊपर स्टॉक गया और सीधा 1200 रुपए तक ऊपर की तरफ स्टॉक ने मूव दी, रफली यहाँ से डबल होते हुए इन लेस देन लाइक आई थिंक अराउंड अबाउट एक साल में स्टॉक डबल हो गया था वहां से। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पे। और आगे चल के क्या होता है हम देखेंगे कि एक सेकेंड, हाँ। तो आगे चल के क्या होता है कि कभी भी स्टॉक ने अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, और आगे चल के अब क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कभी भी कोई रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट आ जाता है और वहां से स्टॉक में एक बहुत अच्छी मूव आ जाती है, फिर ऊपर से जब प्राइस नीचे आता है तो वो रेजिस्टेंस लेवल एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट करेगा। अब जो 605 का लेवल है दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक। अब 605 के आसपास जब भी स्टॉक आएगा तो वहां से स्टॉक में वापस से ऊपर की तरफ मूव आएगी, और हमें यही देखा कि ऑलमोस्ट 606 के आसपास स्टॉक आया, और अभी ऑलमोस्ट 655 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि रफली 7 से 8% ऊपर है अपने लोअर लेवल से। तो अगेन वेरी बेसिक डेफिनेशन, और यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे तो 64 रुपए पे एक ट्रेंड लाइन बन सकती है जो कि 366 को यहाँ पे कनेक्ट करे, और ये पर्टिकुलर आपको दिखेगा कि 605 के आसपास ही ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बता रही है, अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम अभी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम टाटा मोटर्स का ये स्ट्रक्चर का एक हमने एग्जांपल लिया, आगे चल के हम देखें तो एक और डेफिनेशन होती है
जिसको हम कहते हैं आईपीओस। तो आजकल आईपीओस बहुत आ रहे हैं, अभी लास्ट 2-3 महीने से तो इतने नहीं आ रहे फिर भी, बट हाँ पहले के टाइम में बहुत जैसे आईपीओस आ रहे थे। तो आईपीओस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है कि आईपीओ का जो लिस्टिंग डे का लो होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एंड आईपीओ का जो लिस्टिंग डे का हाई होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो ये चीज नोट कर लें, और दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड। जैसे चल के बहुत सारे आईपीओ आते हैं, कुछ भी होता है, तो एक ऑब्जर्वेशन होता है कि आईपीओ का जो लिस्टिंग डे का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, और आईपीओ का जो लिस्टिंग डे का हाई होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। अब उसके ऊपर या नीचे वी नीड अ क्लोजिंग टू वैलिडेट अ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ओके, अ वेरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो क्या करते हैं, थोड़े बहुत एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का एक आईपीओ आया था रिसेंटली। तो ये आईपीओ का लिस्टिंग डे लो था। इनिशियली आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्टॉक ने अपने लिस्टिंग डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया 525 के आसपास, और वहां से स्टॉक में रैली आई 625 तक। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। ये आईजीआईएल का चार्ट है यहाँ पे, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का। तो स्टॉक का लिस्टिंग डे का लो था 459 का, और लिस्टिंग डे का हाई था 525 का। 525 के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और वहां से ऑलमोस्ट 22% की मूव आई 642 तक। तो ये था लिस्टिंग डे का हाई, जो कि था एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अब रेजिस्टेंस के ऊपर मूव आती है तो स्टॉक में होता है ब्रेकआउट, और ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव आती है, राइट। अब ये है लिस्टिंग डे का लो, जो कि है 459। दिस इज लिस्टिंग डे लो विच इज सपोर्ट लेवल, राइट। तो सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग हो गया तो एक बहुत नेगेटिव मूव भी आएगी। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो 440 के आसपास स्टॉक आ गया, तो 459 के नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया। तो बहुत ही एविडेंट है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे स्टॉक में बहुत अच्छी नेगेटिव मूव आएगी। और गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। जैसे ही 460 के नीचे स्टॉक गया, ऑलमोस्ट 34 से 35% की डाउनसाइड मूव स्टॉक में देखने को मिली। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बट हाँ सबको पता होना चाहिए कि आईपीओ का जो लिस्टिंग डे लो होता है और जो लिस्टिंग डे हाई होता है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फॉर दैट पर्टिकुलर आईपीओ गोइंग फॉरवर्ड। तो ये चीज को स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्क्रीन का। ओके, वन मोर एग्जांपल, जैगल। एक आईपीओ आया था 176 का, लिस्टिंग डे हाई था। उसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और वन साइडेड रैली देके 380 रुपए तक चला गया। तो बहुत सारे आईपीओस के चार्ट अगर आप देखने जाओगे और आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि लिस्टिंग डे हाई और लिस्टिंग डे लो जो होता है, दैट हैज लाइक अ लॉट ऑफ पावर इन इट। तो उसमें काफी पावर होती है एक पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर या नीचे की तरफ ड्राइव करने के लिए। तो लिस्टिंग डे हाई एंड लिस्टिंग डे लो शुड बी very carefully observed and kept as a metric to identify support or resistance. तो आज के सेशन में हम चार चार्ट पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, अगर हम डिस्कस करने जाएं तो ऑलमोस्ट 20, 25, 30 और 40, 50 भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं। बट हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है और जहाँ पे थोड़ा एक्यूरेसी रेट ज़्यादा हो, वही वाले चार्ट पैटर्न्स पे फोकस करें, और जो थोड़ा इजियर टू अंडरस्टैंड भी हो और आज के कॉन्सेप्ट से लिंक्ड हो। तो आज जैसे हमने ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करी, तो चार चार्ट पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे, एक डबल टॉप, एक डबल बॉटम, एक असेंडिंग ट्रायंगल और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल। बहुत ही बेसिक चार्ट पैटर्न्स हैं, इजियर टू अंडरस्टैंड है और इजियर टू स्कैन भी है। बहुत ही एक इजी तरीका होता है इन पैटर्न्स को स्कैन करने का। तो मैं आपको वो भी एक भी सेशन के टुवर्ड्स एंड में बताऊंगा कि कैसे हम स्कैन कर सकते हैं ये वाले चार्ट पैटर्न्स को। तो सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न है वो है डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न। अगर कोई स्टॉक मान लीजिए 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी, और वो 120 तक गया, 120 से स्टॉक 110 तक आ गया, उसके बाद वापस 120 तक गया, 120 के ऊपर नहीं जा पाया, फिर अब वहां से जो रिवर्सल आएगा और स्टॉक 110 के नीचे ब्रेक करेगा, तब हम उस पैटर्न को कहते हैं डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न। नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी अ बियरिश पैटर्न, और ये थोड़ा बहुत एम शेप लगता है। सिमिलरली जो डबल बॉटम रिवर्सल होता है वो इसका रिवर्स होता है, मतलब वो डब्लू शेप का लगता है। तो थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख के समझेंगे तभी बेटर समझ में आएगा। बट हाँ, डबल टॉप के बारे में लोगों का थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन है। अभी जो हमने एक बहुत एग्जांपल देखा था रिसेंटली कल्याण ज्वेलर्स का, तो सबसे पहले मैं आपको मिसकंसेप्शन बताता हूँ कि क्या है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ 786 तक गया था, और फिर 632 तक आया था।
अब लोगों में मिसकंसेप्शन क्या है, ये 786 का जो लेवल है ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि जब स्टॉक वापस यहाँ 785 पे आ गया, ये वाले पर्टिकुलर लेवल पे, कई लोग इस पैटर्न को ही डबल टॉप पैटर्न कह देते हैं कि हाँ अब तो डबल टॉप बन गया, अब यहाँ से स्टॉक नीचे आएगा। बट इस पर्टिकुलर पैटर्न को डबल टॉप तब कहा जाता है जब ये जो 632 का सपोर्ट बना है नीचे की तरफ, जब ये ब्रेक हो जाएगा इस पर्टिकुलर कैंडल पे, तब ये वाला पैटर्न इज कॉल्ड अ वैलिड डबल टॉप पैटर्न। ये वाले लेवल पे हम सिर्फ पोटेंशियल डबल टॉप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डबल टॉप पैटर्न इन प्रोग्रेस, अभी बना नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि बन सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल से स्टॉक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो 632 का सपोर्ट है, इसके नीचे स्टॉक ब्रेकडाउन दे दे, और तब हमारे ये पैटर्न को हम डबल टॉप पैटर्न कहेंगे। तो बहुत इजी मेट्रिक है। अब डबल टॉप पैटर्न को हम स्कैन कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हम इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करने के बाद हमको टाइप करना है डबल टॉप। तो ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स का टेक्निकल्स में एक आ जाता है। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमको अपने आप चार्ट पे जितने भी डबल टॉप रहे हैं पास्ट में, वो प्लॉट होके दिखते जाएंगे। तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए, अगर आप जैसे कल्याण ज्वेलर्स का मैं आपको डबल टॉप का पैटर्न दिखा रहा था, ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली प्लॉट कर दिया और यहाँ पे हमको टारगेट भी बता दिया एज पर द डबल टॉप पैटर्न। तो टारगेट प्राइस कैलकुलेशन जनरली ऐसे होता है कि ये टॉप से लेके बॉटम तक हम मेजर करते हैं कि कितना है, 155 रुपीज। तो 155 रुपीज ही नीचे की तरफ हमारा रफली टारगेट हो जाता है, विच इज रफली अराउंड 25%। तो ऐसे करके इसका मेजरमेंट होता है। आगे चल के हम एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न जैसे होता है, जो हमने बात करा कि नीचे की तरफ से जो उल्टा रिवर्सल आता है, बेसिकली लाइक डब्लू शेप का होता है डबल बॉटम रिवर्सल। तो अब हम क्या करेंगे, डबल टॉप का हमने एक एग्जांपल देख लिया। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर वील सी डबल बॉटम का भी एक एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे डेटा पैटर्न का एक चार्ट स्ट्रक्चर प्लॉट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डबल बॉटम इंडिकेटर्स में हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, और यहाँ पे हमने डबल बॉटम को प्लॉट कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे डबल बॉटम के जितने भी चार्ट पैटर्न्स बने हैं पास्ट में, इस इंडिकेटर ने मेरे को ऑटोमेटिकली बता दिया। तो एक बार के लिए हम ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक नीचे में 1740 तक आया था, और फिर 2100 तक गया, फिर वापस से 1740 पे आया। तो ये वाले लेवल पे मैं ये नहीं कहूंगा कि डबल बॉटम हो गया। आई विल से दैट इट इज अ पोटेंशियल डबल बॉटम इनफॉर्मेशन। अभी बना नहीं है बट इनफॉर्मेशन है। अब वैलिडेट कब होगा, जब ये जो 2111 का लेवल है, ये वाला लेवल जिसको हम कहते हैं नेक लाइन, इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा, तब ये पैटर्न वैलिडेट हो जाएगा। अब टारगेट प्राइस कैलकुलेशन अगेन कैसे होता है, ये वाले से हम इसको मेजर करेंगे 360 रुपये, ऊपर की तरफ 360 रुपये का स्टॉक में टारगेट होगा। तो ये सब कैलकुलेशन करने का आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिकेटर ने ऑटोमेटिकली आपको करके दे दिया है। बॉटम भी आइडेंटिफाई कर दिया है, ये बॉटम 1, ये बॉटम 2, और यहाँ पे ये आ रहा है 2400 के आसपास टारगेट। तो बहुत बेसिक है। 2100 के ऊपर जब स्टॉक गया तो स्टॉक में 2400 तक का मूव आएगा, यही होता है डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न। और ऑनेस्टली स्कैन करना भी बहुत सिंपल है। आप डबल टॉप डबल बॉटम को दोनों को एनेबल करके रख दें चार्ट पे, और ऐसे कर करके आप देख सकते हैं। जैसे निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे चार्ट प्लॉट करता हूँ, मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि निफ्टी में क्या कोई डबल टॉप डबल बॉटम रहा है, तो मेरे को यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है। अगर मैं रिलायंस में देखना चाहूँ कि कोई डबल टॉप डबल बॉटम रहा है, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न था समवेयर अराउंड 2024 के स्टार्ट में, जो यहाँ पे बना था। फिर स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन स्टॉक रिवर्स होकर वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो ये वाले पैटर्न ने यहाँ पे मेरे को सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं दिया। अगर मैं ओरेकल फाइनेंस में जैसे चेक करना चाहूँ, मैं बहुत ही रैंडमली यहाँ पे स्टॉक स्कैन कर रहा हूँ आपके सामने, कि जस्ट आपको थोड़ा एग्जांपल बेटर अंडरस्टैंड हो। तो ये डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे मेरे को दिखा था ओरेकल फाइनेंस में। आप देखेंगे 7100 तक स्टॉक आया, फिर ऊपर गया 7900 तक, फिर वापस 100 तक आया, और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, और ऊपर की तरफ फिर 12000 तक चला गया नियरली। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट डबल टॉप एंड डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न्स आर कि ये जब पैटर्न्स जब भी बनते हैं, तो दीज आर लाइक वेरी हाई एक्यूरेसी पैटर्न्स। इनमें जनरली 60 से 70% का हिट रेशियो होता है। और ये चीज़ इज वेरी एविडेंटली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑल्सो विद द लॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड पूरा स्टेटिस्टिक्स जितना भी अवेलेबल है इसके अराउंड। तो सारी चीज़ें के बाद एक चार्ट पैटर्न अब हम और डिस्कस करते हैं। ये जो दो पैटर्न्स हमने मेंशन किए थे, एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल और एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब बात यह है कि इनको भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है।
बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हाँ चार्ट पैटर्न तो सीख लिया पर स्टॉक्स कहाँ से स्कैन करें, राइट? ये वाले पैटर्न स्टॉक में बन रहे हैं, तो हाउ डू वी स्कैन दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स, राइट? हाउ डू वी सी दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स? तो असेंडिंग ट्रायंगल में जनरली क्या होता है कि अगर हम मान लें कि एक स्टॉक 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, अब 100 रुपये का स्टॉक 120 तक गया, 120 से स्टॉक 105 तक आ गया, फिर वापस 120 तक गया, फिर जब वापस नीचे आया तब वो सिर्फ 110 तक गया, देन वापस ऊपर गया 120 तक ही गया, फिर 115 तक आया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो लो बन रहा है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। पहले 100 का लो था, फिर 105 का बना, फिर 110 का बना, और फिर 115 का बना। लेकिन जो हाई है ऊपर की तरफ वो फिक्स्ड है, वो 120 ही रहा है। तो जनरली ऐसा जो पैटर्न बनता है, ये जो फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे नीचे से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया और ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस बनाया, तो आप देखेंगे कि इसको कहते हैं असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ, और ट्राइंगल मतलब जो फॉर्मेशन बन रही है उसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन। एक बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े बहुत, एक्चुअली मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रासिम का चार्ट प्लॉट करेंगे, एक बार डबल टॉप डबल बॉटम को हाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे ट्राइंगल्स टाइप करना है। तो ट्राइंगल चार्ट पैटर्न यहाँ पे हमको एक टेक्निकल्स में दिखेगा, इसको हमको क्लिक करना है। अब जब हमने ये चीज प्लॉट कर दी, तो फिर हम जूम आउट करके देख सकते हैं कि क्या पास्ट में कभी कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स बने थे या नहीं। चलिए थोड़े बहुत रैंडम एग्जांपल्स हम देखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये अभी एक सेकंड। ये देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये ट्रायंगल जो चार्ट पैटर्न होता है बेसिकली ये सारे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स भी दिखा देता है। तो अभी तो हम बाकी दो कॉन्सेप्ट्स को कवर नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली एक सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्म हुआ था। तो एक बार के लिए इसको हाइड कर देते हैं और मैं जस्ट आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दिखा देता हूँ क्विकली। जैसे ये ग्रासिम का चार्ट है हमारे स्क्रीन पे, दिस इज ग्रासिम चार्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो इस पे क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस लाइन थी वो 1922 पे फिक्स हो गई, और जो नीचे की तरफ लोज बन रहे थे, पहले 1271 से स्टॉक ऊपर आया, फिर 1520 तक आया, और फिर अप्रोच कर करके 1922 तक गया, एंड अल्टीमेटली 1922 के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, राइट? बहुत ही इजीली स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया 1922 के ऊपर, एंड देन ऑलमोस्ट जो रैली आई ऊपर की तरफ वो 2800 तक आई। तो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। एंड इसको स्कैन करने के टू बी ऑनेस्ट बहुत तरीके होते हैं। अभी जो है वो आई थिंक इंडिकेटर करेंटली वर्क नहीं कर रहा है। तो एक और तरीका होता है, चार्टिंग करके एक वेबसाइट है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्टिंग असेंडिंग ट्रायंगल। तो चार्टिंग पे यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनर्स होते हैं। तो असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के अगर हम स्क्रीनर में चले जाएं, तो यहाँ पे हमको बहुत सारे स्टॉक्स का रिजल्ट मिलेगा, और इन सारे स्टॉक्स में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा होगा। और इनमें से किसी भी हम एग्जांपल को लेके एक बार ऐसा देख लेंगे अभी आगे चल के। पहले हम एक बार अपना दोनों पैटर्न्स को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, एक और तरीका होता है असेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड करने का। जनरली क्या होता है, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है, दिस इज कॉल्ड अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही मूव करता रहेगा, वो ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। देर आर टू वेज टू ट्रेड असेंडिंग ट्रायंगल। एक होता है कि ऊपर की रेजिस्टेंस की लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आ गया, तो हम कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर लिया, हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर लिया, राइट? और एक दूसरा तरीका होता है असेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड करने का, वो होता है रिवर्सल। अब ऊपर की तरफ 5450 का स्टॉक में रेजिस्टेंस है, और ये ट्रेंड लाइन बन रही है जो हाई को जनरली ऊपर पुश कर रही है। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गया ट्रेंड लाइन के नीचे, तो यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा और कंसिस्टेंटली नीचे ही जाता जाएगा। अब फर्क क्या होता है कि जो असेंडिंग ट्रायंगल रिवर्सल पैटर्न होता है, उसका एक्यूरेसी या हिट रेशियो असेंडिंग ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न से ज्यादा होता है। And this was even a surprise to me when I, initially studied this during my CMT level 1. तो ये जो रिवर्सल पैटर्न बनता है, इसका एक्यूरेसी रेट ऑलमोस्ट 80 to 90% के बीच में होता है। बट कंटिन्यूएशन पैटर्न का जो एक्यूरेसी रेट होता है वो जनरली 60 to 70% के बीच में होता है। So these are, two very important parametrics, and I feel that metrics that one should keep on their notebook. I feel that कि ये चीज लिख के रखनी चाहिए सबको। डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी सेम होता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल का उल्टा बेसिकली हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल, कि यहाँ स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, लोअर हाइज बना के 80 रुपए का सपोर्ट बना लिया, 95 तक गया,
फिर 90 तक गया, फिर 85 तक गया और अल्टीमेटली 80 के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। तो ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगेन दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के, एक हो गया कंटिन्यूएशन, जो कि अभी निफ्टी में ही बना है, हमने देखा है। मैंने आपको निफ्टी का चार्ट यहाँ पे दिखाया ही था। ये देखिए 23,260 का यहाँ पे सपोर्ट था, और यहाँ पे 26,270 से लेके ये वाला एक पर्टिकुलर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे हमको बना मिला था। देखिए ये हमको ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रही है, और ये लोअर हाइज भी बन रहे हैं, और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन आया तो इंडेक्स में फर्दर सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ 22,000 तक आया। ऊपर की तरफ हल्की सी मूव आई, पर वापस से वो ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करके वापस से फर्दर सेलिंग प्रेशर में चली गई पूरी मार्केट। तो ये था डिसेंडिंग ट्रायंगल कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन, और ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल रिवर्सल फॉर्मेशन। ऑफन ये होता है कि अब यहाँ पे सब बेस बन रहा है 3,950 का, और ये हमने ट्रेंड लाइन भी बनाई है, पर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रिवर्स ब्रेकआउट आ गया ऊपर की तरफ 4,200 के ऊपर, और वहां से स्टॉक में जो रैली आई वो ऑलमोस्ट 500 तक ऊपर की तरफ चली। अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट, डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो रिवर्सल पैटर्न होता है उसमें थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी और हिट रेशियो होता है कंपेयर टू डिसेंडिंग ट्रायंगल का कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन। अब इनको स्कैन करने की जो मैं बात कर रहा था, तो बेसिकली असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल के स्क्रीन चार्टिंग पे प्री फॉर्मुलेटेड स्क्रीनर्स हैं, जो कि हम इन दोनों वेबसाइट से ले सकते हैं। व्हाट आई डू इज कि ये वाले दोनों स्क्रीनर्स को आई जस्ट शेयर अपॉन द चैट बॉक्स की you know so that people can also access to these screeners. तो इनको खोल के we can see the particular charts and we can analyze the charts on these time frames to identify कि अगर ascending या descending triangle formation कोई भी चार्ट पे हो रहा है या नहीं। तो ऑलमोस्ट 5:15 हो गया है। एक काम करते हैं, अभी जनरल एक बार छोटा सा मार्केट आउटलुक ले लेते हैं। तो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है दैट मार्केट इज मूविंग इन अ सटल डाउन ट्रेंड। ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल से जितना भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो पूरा मार्केट में चल ही रहा है। 26,277 से हम 22,000 के आसपास अभी आ गए हैं। एक शॉर्ट कवरिंग मूव छोटी सी आने की पॉसिबिलिटी है, तो मेरे को लगता है कि 23,000 तक हम धीरे धीरे करके वी शुड आइडियली गो टिल 23,000। आगे चल के मेरे को लगता है कि ये जो 22,300 का यहाँ पे एक बहुत छोटा सा सपोर्ट बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। सो 22,300 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नाउ। अगर 22,300 टूट जाता है तो हम वापस से 21,950 के आसपास आ जाएंगे। लेकिन अगर 22,300 होल्ड हो जाता है तो मेरे को लगता है कि एक बार एक रिलीफ रैली 23,000 तक निफ्टी में आनी चाहिए। तो फॉर द टाइम बीइंग आई एम मोर फेवरेबल टुवर्ड शॉर्ट कवरिंग साइड। और सेक्टोरिकली मेरे को ऐसा लगता है कि मेटल इंडेक्स यहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा है। पूरी मार्केट की वीकनेस में इंडेक्स ने होल्ड किया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेटल इंडेक्स में इनिशियली अभी यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया है, और ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं अभी हम फिलहाल। तो मेरे को लगता है आपको मेटल इंडेक्स इज लुकिंग टू बी वेरी गुड, and overall market view from a broader standpoint is going to be just that for the time being we are into a short covering rally। 23,000 के आसपास जब मार्केट आता है तो हम एक बार वापस रिव्यू करेंगे, एंड वील डेफिनेटली अपडेट कि आगे चल के यहाँ पे क्या व्यू हो सकता है या क्या आउटलुक हो सकता है। बट फॉर द टाइमिंग वी आर इनटू अ शॉर्ट कवरिंग फेज। आई फील 22,300 जब तक होल्ड है तब तक देर इज नो नीड टू वरी। हाँ यस, 22,300 अगर ब्रेक हो जाता है देन देयर कैन बी सम बिट ऑफ नेगेटिव मोमेंटम व्हिच कैन फर्दर पुश द मार्केट टू। सो अब ये वाले दो चार्ट पैटर्न्स ही क्यों मैंने आज के लिए सेलेक्ट किए, टू बी ऑनेस्ट बहुत इजी है स्कैन करना। जैसे मैंने बताया डबल टॉप डबल बॉटम को तो प्लॉट करना बहुत इजी है। ट्रेडिंग व्यू पे जाके आपको सिर्फ इंडिकेटर सेक्शन में जाके डबल टॉप डबल बॉटम वाले दोनों इंडिकेटर्स को प्लॉट करना है, एंड यू कैन वेरी वेल बी एबल टू सी एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न्स विदाउट एनी हैसल। रेशियो ऑफ सक्सेस काफी अच्छा है, 60 से 70%, 80-90% भी चला जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल के रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन में। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन that I selected these two patterns. Very easy to explain also, and very core link to the concept which we studied today. So I think yes, that's pretty much of it from our first session of Learn to Earn. हमने बहुत बेसिक शॉर्ट सिंपल स्वीट रखा, कोशिश करा कि जितना कोर कॉन्सेप्ट पे स्टिक करे उतना बेटर है। एंड आई होप कि आज के सेशन से थोड़ा बहुत वैल्यू सबको ऐड हुआ होगा। कोई भी अगर क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, एक बार हम टेक अप ऑन कर लेंगे। Thank you, Riyan. There is one question on the chat box. Rakesh Rao is asking how to avoid negative or false breakout or breakdown. देखिए तो राकेश जी, जैसे अपना पहला क्वेश्चन है कि
फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे अवॉइड करें। तो बात यह है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जैसा कुछ होता नहीं है। जनरली ऐसा होता है या तो स्टॉक ब्रेकआउट देके अपनी डायरेक्शन में मूव करता है, या फिर स्टॉक में ब्रेकडाउन आ जाता है और या फिर स्टॉक में ब्रेकआउट आ जाता है और वो अपना स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, हर पैटर्न का अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है, हर पैटर्न की अपनी एक्यूरेसी होती है। अब वो जो एक्यूरेसी परसेंटेज पर्टिकुलर हम डिफाइन करते हैं कि हाँ 100 में से 60 बार पैटर्न सही जाएगा, जो कि 60% एक्यूरेसी है, तो 40 बार पैटर्न गलत भी जाएगा। तो वो जो 40 टाइम्स पैटर्न गलत जाता है, उसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और कई लोग उसको फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। अब बात यह है कि हम कोशिश करें कि हम 100 में से 100 बार सही हो जाए, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए इट इज़ एडवाइज्ड कि जो भी ट्रेड करें वो स्टॉप लॉस के साथ करें और अपना रिस्क मैनेजमेंट ऐप रखें। तो दैट इज आंसर। So follow-on question from Rakesh Rao. He says कि scanner will get very big list of stocks. How to identify and pick the good one? देखिए, स्कैनर में ऑफ कोर्स बहुत बड़ी लिस्ट आएगी स्टॉक्स की। तो अब बात ये होती है कि जितना हम इन चार्ट पैटर्न्स को प्रैक्टिस करते हैं और रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारा ग्रिप थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है इन पर्टिकुलर पैटर्न्स पे। तो माय एडवाइस वुड जस्ट बी कि जितना हो सके कोशिश करें कि प्रैक्टिकल अप्रोच लगाए, और इन पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न्स को जितना हम ऑब्जर्व करेंगे, जितना हम स्टडी करेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हम आगे चल के बेटर होंगे। तो it's better that go with the practical approach and practice as much as you can, and you'll get a hang of it. I will add one point, Mr. Rakesh Rao. When we get a lot of stocks as per the scanner, so use some fundamental skills. मतलब फॉर एग्जाम्पल वो स्कैनिंग में ऐसा कोई स्टॉक है जहाँ जहाँ पे आपने वो नाम सुना ही नहीं है, तो उसमें देखना मत। आईसीआईसीआई बैंक आता है, एसबीआई बैंक आता है, ऑब्वियसली वहाँ पे आपको पैटर्न पे फोकस करके वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, लीडर्स इन द इंडस्ट्री है। पीआई इंडस्ट्री आता है या रिलायंस इंडस्ट्री आता है, ऐसे नाम जो बहुत एक्टिवली ट्रेडेड होते हैं, वहां पे अगर ये पैटर्न अप्लाई हो रहा है, तो देन देयर कैन बी ए गुड पॉसिबल 60+ पॉसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। अगर कोई ऐसा नाम है जहाँ पे मतलब इट्स ए वेरी माइनर स्मॉल कैप, नैनो कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, जहाँ पे फॉल्स या आर्टिफिशियल प्राइस एक्शन में ये शायद पैटर्न वहाँ पे दिखाई दे, बट वहाँ पे वो स्टॉक्स को इग्नोर किया जाता है। तो इग्नोरिंग इट बी वेरी स्मॉल कंपनीज को इग्नोर कर सकते हो, बट लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं, उस पे अगर ये पैटर्न आता है, तो वहां पे आप ट्रेल एंड एरर कर सकते हो, बिकॉज अगेन सक्सेस रेशियो इज नॉट 100%। सो ऑब्वियसली 60 to 80%, मतलब वहां पे भी 20% 40% फेल्यूर के चांसेस भी हैं। तो आपको एज रियांक सेड थोड़ा सा ट्रेल एंड एरर पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए बिफोर टेकिंग द ट्रेड। Plus, there are two questions. People are asking, is this video available later? Obviously, yes, it will be. It is live on Facebook. तो आप अपने Facebook पेज पे आप लाइक कीजिए, वहाँ पे आज का सेशन पूरा रिकॉर्डेड सेम फुल रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, तो यू कैन गो थ्रू द वीडियो एनी डे एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Lavneet Puri has a question. He is asking, in case of gap left, will be will it get filled? Please check JCHACK stock. सर हम स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी नहीं लेंगे, बट क्वेश्चन जो है, गैप जो गैप आपसे खुला हुआ है, वो गैप फिल करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? रियांक, व्हाट इज योर आंसर ऑन दिस? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, गैप्स का एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक इन इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अब बहुत तरह के गैप्स होते हैं, एग्जॉस्शन गैप्स होते हैं, ब्रेकअवे गैप्स होते हैं, कॉमन गैप्स होते हैं। तो ये इन इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक एंड अ कॉन्सेप्ट। हम आगे चल के लर्न टू अर्न सेशन में इस पर भी एक सेशन रखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ गैप लेफ्ट विल इट गेट फिल्ड, तो कॉमन गैप होता है अगर, तो यस इट डेफिनेटली डज गेट फिल्ड। लेकिन ब्रेक अवे गैप या ब्रेक अवे गैप अगर फॉर्म हो रहा है, तो इट मे और मे नॉट गेट फिल्ड। पर इस पे आगे चल के हम एक डिटेल में सेशन करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग कॉमन गैप है तो यस फिल होएगा फॉर श्योर। Lavneet Puri, I think your question is answered. Any more questions? We can keep the floor open for another 1 or 2 minutes, because we would like to have a very specific session and specific time. Nilesh has a question. In double top bottom, same as head and shoulder, what is your answer, Riyank?
नहीं नहीं नीलेश जी, देखिए हेड एंड शोल्डर्स थोड़ा डिफरेंट चार्ट पैटर्न होता है। तो हेड एंड शोल्डर्स में जनरली 3 लेग्स होते हैं, 2 शोल्डर्स होते हैं और एक हेड होता है। अब डबल टॉप में फर्क ऐसा है, सिर्फ 2 लेग होते हैं। तो सिमिलर हाई होगा, बीच में जो हेड वाला पार्ट होता है वो नहीं होता है। तो डबल टॉप या डबल बॉटम इज नॉट द सेम एज हेड एंड शोल्डर। So another question is how do we trade at double top, double bottom, sell when the top is reached and buy at the bottom is reached? तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि अब बहुत एक इजी एग्जांपल यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का जो हमने लिया था स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जब ये टॉप रीच हो रहा है दूसरा वाला, तब हमको शॉर्ट नहीं करना है। तो हमको शॉर्ट तब करना है जब ये जो लो है 632 का, ये ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ। तब हमारा जो पैटर्न है डबल टॉप का वो वैलिडेट हो जाएगा। तो ये वाला लो ब्रेक होने पे ट्रेड करना है डबल टॉप। सिमिलरली डबल बॉटम का उल्टा कॉन्सेप्ट। I think almost all questions are asked. I request everybody who is watching live to go to our Facebook page and please share your feedback on the session. So it depends on your feedback. We will be continuing this session as educational Zoom session for all the viewers. Every month we are trying to have 2 at this point of time. If the demand and query are more, we can do at least 3 in the month, depending on the topic as well as the markets. Pathak has a query. What is the accuracy of double top or bottom in intraday, means low time frame 5 or 15 minutes? देखिए, अब लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है, तो एक्यूरेसी हल्का सा हिट लेता है। बट जनरल केसेस में भी डबल टॉप डबल बॉटम का एक्यूरेसी 60-65% के आसपास रह ही जाता है। तो 60 to 65% वुड बी द आंसर टू योर क्वेश्चन। राकेश राव जी का भी एक क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉप लॉस इन दिस पैटर्न। तो डबल टॉप का जैसे ये चार्ट पैटर्न बना है, 632 का एक सपोर्ट के नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। तो जनरली बहुत स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है कि 795 का स्टॉप लॉस हो। बट अगेन दैट इज गोइंग टू बी लाइक वेरी फार। तो हम क्या करते हैं, 632 का सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो ये जो ब्रेकआउट की जो कैंडल होती है इसके हाई को हम stop मान लेते हैं। तो यहाँ पे 661 जो है वो भी स्टॉप लॉस होगा। तो जो ब्रेकआउट Uh, या ब्रेकडाउन कैंडल है उसका हाई है। Priyank, in general question, how do you fix stop loss? Are there any fixed strategy or how? तो जनरल केसेस में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की जो स्ट्रैटेजी होती है उस पे ये होता है कि जो ब्रेकआउट की कैंडल का लो है या जो ब्रेकडाउन की कैंडल का हाई है, तो यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकडाउन आया 632 के नीचे। तो ये जो ब्रेकडाउन की कैंडल है इसका हाई 661 है। राइट, दिस पर्टिकुलर ब्लू लाइन जो मैंने बताया है ये 661 है, तो ये स्टॉप लॉस होता है। सिमिलरली इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं और इसका मान लीजिए ब्रेकआउट आया होता, तो ब्रेकआउट की कैंडल का लो का स्टॉप लॉस होता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी जो फॉलो करते हैं मोमेंटम प्लेयर्स। One last question we'll take. Which pattern have the most successful ratio? एक question है। तो I think that the 4 patterns that we discussed उसमें ascending triangle reversal pattern और descending triangle reversal pattern उसकी accuracy roughly between 80 to 90% होती है। So that is the highest successful ratio pattern for this in चार में से। Will you cover point and figure sometime in future? Yes, definitely. सब point and figure पर भी हम session आगे चल के कभी plan करेंगे। तो we'll definitely try and think upon it in future. So I think we are almost nearing the end of the session. I hope we were able to address all the questions, and आज का सेशन जितना भी छोटा और जितना शॉर्ट सिंपल स्वीट हमने रखा उतना सबको अच्छा भी लगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। If you have any questions, any feedback, please go to our Facebook page and please write your comments. Thank you very much and have a nice weekend and happy Holi to everyone.